Hello everyone, welcome to CGB Mentors. I hope you're doing great and your studies are going beautiful and well. So yes, today's video is something just to take an effort on our part कि अब जो experience है since RBI का notification आ गया है and there must be a lot of confusion in your mind because of the vacancies है ना 40 vacancies are there and that is why there must be a lot of confusion in your mind क्यों आई है इतनी कम वैकेंसीज क्या बिगाड़ा था हमने आरबीआई का हम तो एक साल से प्रिपेयर कर रहे थे 6 महीने से 2 साल से 3 साल से एंड देयर मस्ट बी मैनी एस्पिरेंट्स जिनका शायद 2-4 नंबर से ही इंटरव्यू छूटा होगा एंड नाउ दे आर अगेन इन द कॉम्पिटिशन है ना दे आर नॉट इवन श्योर अबाउट द फेज 1 प्रिपेरेशन और फेज 2 ऐसा होता है ना इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी राइट देयर मस्ट बी a lot of buzz in your mind obviously in the social media also and since you're consuming all that content right on a regular basis तो बहुत सारा confusion होना बहुत ज़्यादा natural है we are trying basically to help you out in this journey right so that you can take a balanced decision for yourself right and we are not here just to basically condition you to take our courses we are not going to talk about courses here ठीक है we are just trying to help you out ठीक है so basically in this journey right in this journey there must be two types of students right first of all there must be beginners when I say beginners we can say that at least they are preparing since 3 to 4 months right because now these aspirants please ये मत सोचना कि हाँ beginners थोड़ी है हमें तो 6 महीने हो गए if you compare yourself with the journey of those aspirants right who have been in this preparation for more than 1 year who have taken the course last year to prepare for 2026 then you can or you can say if even if you're not a beginner like they can be aspirants they are just preparing for 3 months but their preparation is far ahead than those who are preparing for 1 year so beginners when I say beginners it means where your preparation lies right so beginners or you just have started or how is your basically content reasoning why because since the vacancies are less right since the vacancies are less now you must be ये एक रियलिटी चेक है ठीक है ये एक रियलिटी चेक है कि आपको भी मालूम होगा कि कट ऑफ विल बी हाई है ना कट ऑफ विल बी हाई एंड देयर इज गोना बी इंटेंस कंपटीशन होगा एंड स्पेसिफिकली जो सबसे एक चीज का डर लगता है ना सभी एस्पिरेंट्स को दैट इज टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ द क्वांट एंड रीजनिंग ठीक है दैट इज टू जितने भी टॉपर से हमारी बात हुई है जितने भी हमने पॉडकास्ट ली है एवरीवन हैज said that the most difficult part in the phase 1 was to clear the sectional cutoff of the quant and reasoning right so you must be at different stages in how you are in the quant and reasoning right then there are aspirants who are in the preparation like have given 1-2 attempts they have given means then they have given interview also see first of all I just want to clarify that whatever the video which we are talking about today it's there is like no one size fit for all you have to analyze yourself you have to analyze your preparation you have to analyze your own journey right इसके जो भी hardships थे इसके जो भी emotional traumas हैं mental traumas है वो आपको अपने आप analyze करना पड़ेगा हम थोड़ा सा आपको बस एक bifurcation करके दे रहे हैं so suppose if you're quant and reasoning है ना quant and reasoning you are basically well prepared right if you are well prepared with your quant and reasoning and you have been in the preparation since months then I would say that please give this exam है ना do not miss out this opportunity no doubt the cutoff would be high but then अब क्या है ना बट देन अब क्या आप तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो ना यू कैन नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट्स ठीक है यू कैन नॉट थिंक ऑफ द फल अगेन एंड अगेन बिकॉज यू हैव डन put so much of your blood and your sweat inside it right but there must be many aspirants who has basically less preparation for quant and reasoning and basically they have just started and they have not basically let's say they know the questions but their speed उनका उतना ज़्यादा नहीं हुआ है then what right then you can think of giving another exams ठीक है then you can think of another exams but see if you're not worried about the number of attempts कि भाई मेरे जो attempts है वो 6 ही है if you're not worried about your age then you can give RBI grade B examination but if you're worried of your number of attempts है ना and your age is also there right and you think that my energies should be there for any other particular examination right then you can focus on any other examinations we'll talk about what kind of examinations right but see this is a kind of reality check
for me also, for you all, है ना, because we just don't want to basically entice you कि दे दो दे दो दे दो, कुछ भी कर सकते हो, सब पॉसिबल है। एक रियलिटी चेक, एक फैक्ट थिंग होनी चाहिए आपके जीवन में, ठीक है। और आपको पता होगा कि एंड डोंट एनालाइज योर कंटेंट रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मॉक्स, आई विल टेल यू व्हाई, है ना। ऑब्वियसली मॉक्स आर नॉट द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया टू जज योरसेल्फ, यू नो योरसेल्फ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। एंड इफ यू थिंक कि अगर आपका कंटेंट रीजनिंग 50 to 60% भी प्रिपेयर हो गया है, एंड डेफिनेटली देन यू कैन क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। ये भी एक बात होती है। आपको जो है स्पीड पे फोकस करना है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स पे फोकस करना है ना, जो कि ऑलरेडी देयर आर मेनी सेशन, स्ट्रेटेजी सेशंस आउट बाय अशोक सर एंड मासूम मैम एज वेल, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, ठीक है, द सेकंड थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज देन देयर सर्टेन एस्पिरेंट्स हु आर आल्सो थिंकिंग दैट आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्जाम आएगा, है ना, आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्जाम आएगा, राइट, एंड वी कैन गिव दैट, राइट, ठीक है। अब देखो मान लो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आएगा, सो डेफिनेटली दैट हैव हाई वैकेंसीज, बट यू नो दैट व्हेन देयर आर हाई वैकेंसीज देयर विल बी हाई competition, right, and many number of applicants will increase. Why? Because its exam is going to be easy, right, and definitely every person, whether they're preparing for PO, whether preparing for LIC, assistant clerk, every person is going to fill this examination, and obviously the cutoff would be high. Versus if your dream is of grade B, right, if your dream is of grade B, then you should give this examination. Why? Because this is your dream, and no one shall me or I or anyone shall not come, है ना, आपके और आपके सपने के बीच, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मुझे जो है अपनी जो एनर्जी है वो आरबीआई असिस्टेंट पे फोकस करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बट और लग जाता है, दैट अभी तक के लिए वी आर नॉट श्योर, ठीक है, वी आर नॉट श्योर वेदर दिस एग्जाम वुड एक्चुअली मेटेरियलाइज, ठीक है, कि ये वाला एग्जाम होने भी वाला है या नहीं, ठीक है, एक ये भी बात हो जाती है। तो यू हैव टू कंसिडर योर ओन जर्नी, यू हैव टू कंसिडर योर ओन सेल्फ कि आपका क्या सपना है, और विल यू वेट फॉर आरबीआई असिस्टेंट, जहाँ पे ऑब्वियसली द एग्जाम इज गोना बी इजी, बट देयर विल बी कट थ्रोट कंपटीशन। तो यू हैव टू एनालाइज दिस योरसेल्फ, ठीक है। आई कैन गिव यू जस्ट डायमेंशंस ऑफ वेरियस थिंग्स, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको खुद करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। देन the third thing is this very important thing which I wish basically wanted to bring this out is that, ठीक है, देखो आरबीआई में इतनी कम वैकेंसीज आई है बिकॉज आरबीआई में ऑलरेडी, है ना, ज्यादा वैकेंसीज आती है, तो ऑटोमेटिकली हमें 40 वैकेंसीज कम ही लगेंगी, है ना। बट इफ यू सी अदर एग्जाम्स लाइक नबार्ड, है ना, और एफएसए, जहाँ पे सिर्फ 20 वैकेंसीज ही आती है, ठीक है। नबार्ड में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती है, ठीक है, 50 to 60 या हाउएवर, ठीक है, इतनी वैकेंसीज आती है फॉर द जर्नलिस्ट पोस्ट, राइट। देन ऑल्सो फिर भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं, वो निकालते हैं, दे आर इन द कॉम्पिटिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। नाउ इफ यू हैव दिस माइंडसेट कि आई एम नॉट गोना गो वरी अबाउट दिस थिंग कि कितना वैकेंसीज है, मुझे बस अपनी मेहनत पे विश्वास है, मैंने जो आज तक किया है मुझे उस चीज़ पे विश्वास है, कंसिडर द फैक्ट दैट आपका प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच गया है, ठीक है। अब वो आप किस लेवल पे हो वो आपको खुद देखना है ना, कि यू आर गेटिंग डिसेंट आपका रिवीजन हो गया है, डिसेंट आपका सिलेबस हो गया है, कंटेंट रीजनिंग के सर्टेन टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, देन यू हैव द स्पीड ऑल्सो, यू हैव कवर्ड पीआईबी ऑल्सो सेवरल मंथ्स, है ना, लेट से 2 महीने के तो एटलीस्ट आपने कर लिए हो, उसको रिवाइज कर लिया हो, री रिवाइज कर लिया हो, है ना, यू नो वेयर यू स्टैंड, है ना, एंड देन यू कैन जस्ट अभी उसके बाद आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, यू हैव टू जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। और ऐसा नहीं है कि 2 महीने में या 40 दिन में, अभी तो 40 दिन है, 2 महीने मेरे मुंह से निकल गया, तो जो 40 डेज है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकल सकता। देयर आर एस्पिरेंट्स जो 3 महीने से भी अगर पहले से वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्होंने हो सकता है उनका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग सिंस 7-8 मंथ्स, ठीक है। तो यू हैव टू बेसिकली सी कि अदर एग्जाम्स में भी लेस वैकेंसीज आते हैं, एंड लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड somehow let's say you are not able to clear it, then obviously you can focus on another exams like NABARD, right। NABARD का नोटिफिकेशन भी जो है जल्दी आ जाएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग इट मे बी इन द मंथ ऑफ यूजुअली सितंबर के आसपास आता है या अगस्त सितंबर में आता है, अब आप लोगों तो बहुत दूर है, ठीक है। टाइम जस्ट रन्स, यू नेवर नो कब मतलब बहुत जल्दी टाइम निकलता है। तो और आईएफएस से, ठीक है, आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और यस मुझे एक चीज़ और बोलनी है कि देखो the level of competition in these regulatory bodies examinations, ठीक है, is becoming so high, ठीक है, the uncertainty is becoming so high, the competition is becoming so high,
right? That you cannot rely, ठीक है, on one examination. You cannot rely on one examination and ये चीज़ घोट के पी जाओ, ठीक है? When I was preparing, I was also preparing simultaneously for examinations. I gave RBI, I gave 4 NABARD mains, I gave the 1 SEBI mains, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप आप कर भी रहे होंगे, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप नहीं कर रहे होंगे. And also there's gonna be a podcast, okay, maybe in a day or tomorrow. In that, the person has given 6 interviews. Can you imagine the 6 interviews and of the various examinations, NABARD, SEBI, PFRDA, and RBI? So it means that even the toppers had this mindset, okay, that you cannot rely on one examination, be it RBI or be it NABARD. Okay, so this was my take on this slide. Now hit the bullseye. Now you are into this examination. Now you are thinking कि भाई मुझे तो exam देना है चाहे कुछ भी हो जाए. Now this is the previous year cutoff, that is for the general, ठीक है, आप देख लेना different categories की क्या cutoff है. So in this general awareness it was 24, in the reasoning it was 18 marks, in English and in font it was 9, and the overall cutoff was 77.50, considering the fact that the vacancies are less, right? So ठीक है, so at least ठीक है, in the sectional cutoff you have to score 35%, right? Let's say यहाँ पे 24 है तो आपको यहाँ पे 30 above marks लाने पड़ेंगे, right? तो you can calculate it what is 35% and the overall cutoff again, ठीक है, 40% के आसपास जो है वो रहेगी. तो आप एटलीस्ट ये देखें कि मेरे इतने मार्क्स के लिए क्या मैं प्रिपेयर हूँ, क्या मैंने इतना कंटेंट पढ़ लिया है, क्या मेरे लेट्स से यू आर थिंकिंग ऑफ क्वांट, है ना? आप देखो कि क्या मैंने, मेरे पास DI के अगर मेरे पास 2 क्वेश्चन है तो क्या मैं वो 2 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ? अगर मैं नंबर सीरीज कर रहा हूँ या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रही हूँ तो क्या मैं इतने मार्क्स बना लूंगी? मतलब नॉट 9, लेट्स से अबाउट 13 to 15 मार्क्स, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्या जाएगी, हाई जाएगी, वैकेंसीज कम है. तो यस, यू हैव टू बेसिकली एनालाइज योरसेल्फ, ठीक है, दैट वेयर डू यू स्टैंड, है ना? वेयर डू हैव टू रीच, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर टारगेट, क्या आप वो कर सकते हैं या क्या नहीं. तो सो दैट एक माइंड में कंफ्यूजन रहा हो, ठीक है. मेरा हमेशा से एक रूल रहा है और मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है, ठीक है, और मैं हमेशा इसको यूज करती हूँ, दैट इज आर, ठीक है, या पार, आर या पार, ठीक है. या तो इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ. अगर आप सोच रहे हो कि चलो मुझे नहीं देना, ठीक है, तो मतलब जस्ट ट्राइंग टू कंडीशन बेसिकली आपके माइंडसेट को कि अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है तो ठीक है, फिर मत सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, फिर सोच लो कि मुझे और कौन सा एग्जाम देना है, आरबी असिस्टेंट देना है, नाबार्ड देना है, ठीक है. बट अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो देना ही है, फिर वैकेंसीज के बारे में मत सोचो. व्हाई? बिकॉज देयर मस्ट बी मेनी एस्पिरेंट्स हु आर नॉट थिंकिंग ऑफ वैकेंसीज, रादर देयर 95% और 85% ऑफ देयर एनर्जीज आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर गोल्स, ठीक है. वो पार मतलब बस आपको फिर वो पार करना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है. देन डू नॉट थिंक ऑफ द वैकेंसीज, डू नॉट थिंक ऑफ द कट ऑफ. ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान द कट ऑफ, ठीक है, कि आपका क्लियर हो जाए. डू नॉट थिंक कि क्या क्या कैसे, कितने एस्पिरेंट्स हैं, कितने एप्लीकेंट्स हैं, कैसे क्या होगा, ठीक है, क्या कट ऑफ जाएगी, ऑल ऑफ दैट प्लीज प्लीज प्लीज. इतना उसमें बेसिकली क्या होता है ना, आप सोच भी लोगे तो क्या होगा कि 1-2 दिन सोच लो, उसके बाद आपका एनर्जी वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा. इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, ठीक है. एंड द लास्ट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, that is your intuition. You know very well, ठीक है, you know very well that who you are. Who you are means whether you are preparing solo or you are a working aspirant, ठीक है, या आपके पास और भी कोई गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है. where you stand and where you want to reach, right? where you stand and where you want to reach, right? and what are your dreams, what are your goals, ठीक है. एक इंट्यूशन आ जाती है, ठीक है, एक इंट्यूशन आ जाती है कि whether I should go for this exam or whether I should go for this exam or not, based on your own personality, based on your own preparation, based on जो भी आपने दिन रात खून पसीना मेहनत रिसोर्सेज पेरेंट्स all of that, ठीक है, your friends, all your opportunities you had, ठीक है. for example you have given the interview, so obviously you are going to give, right? because आपको एक वो confidence है कि yes मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, right? and your hard work, कितना आपने hard work किया है, you must be aware of that. no one can basically tell you, no one can basically take the decision for you on this part. you have to analyze it. we were just trying to help you out in this, that how you can analyze it, your preparation, your thing. And obviously if you want any kind of help you can mail to us, right? you can contact us. You can basically if you want to make your preparation easy via MCQs, then there is obviously Brahmastra series, and there's obviously no one size fit for all. मैं obviously एक जनरल मॉडल है ना, एक मॉडल, एक जनरल आइडियोलॉजी, नॉट आइडियोलॉजी, एक जनरल चीज आपको बता सकती हूँ. डिसीजन आपको खुद लेना है, ठीक है. और माई पर्सनल टेक इज विल बी कि if you have been in this journey, if you know that your hard work is worth of, then do give this exam irrespective of the vacancies.
ठीक है? कहीं न कहीं, कैसे ना कैसे करके वो काम आएगा ही आएगा, ठीक है? मेरा एग्ज़ाम्पल ले लो, कैसे वो काम आ रहा है अभी, ठीक है? इन माय करियर प्रोग्रेशन, इफ नॉट इन दिस गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, देन हियर, ठीक है? सो येस, दैट्स इट गाइज़ फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वाज़ समव्हाट हेल्पफुल। अगर आपको कुछ भी और हेल्प चाहिए, देन यू कैन बेसिकली कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी, वेरी मच। कीप वर्किंग हार्ड, कीप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, ठीक है? डू नॉट लिसन द बज़ नाउ। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, उसके बाद जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, सिट ऑन द चेयर एंड टेबल एंड बस पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। यू आर वॉचिंग CGB Mentors, सोनिका।